اونچی آواز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اکیلے میں اونچی آواز میں نماز پڑھتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اس کے ایک دو حروف سن لے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، نماز اسلام کا سب سے اہم رکن اور ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض کیا گیا ہے اور کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا بار بار حکم دیا ہے اور اسے برائیوں اور فحشی سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی رائگاں جائیں گے۔ جو شخص نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ نماز کو چھوڑنے کی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو دین کا سب سے اہم ستون سمجھتے تھے اور اس کے بغیر کسی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکتیں ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا پوری رات عبادت کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جیسے پانی کپڑے کی میل صاف کر دیتا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ اذان اور پہلی صف کا ثواب جان لیں تو قرعہ اندازی کر کے اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو مسجد میں نماز کے لیے آنے میں مشکل ہو تو اسے سہارا لے کر آنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا مقام بہت بلند ہے۔ جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی حسرت ہوگی۔ جہنم میں لیے جانے والے لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا تو وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شیطان انسان کو سب سے پہلے نماز میں سستی دلاتا ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ نماز ہی وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے اور نیکیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ بندے کے لیے سب سے بڑی دعا اور اللہ سے رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص نماز میں خشوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت بندہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو شخص نماز کو دل سے ادا کرتا ہے اس کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جو شخص نماز میں لاپرواہی کرتا ہے اللہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے اور اس کے کاموں میں رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ نماز قیامت کے دن مومن اور منافق کے درمیان فرق کرے گی۔ منافقین سب سے زیادہ نماز میں سستی کرتے تھے۔ وہ فجر اور عشاء کی نماز چھوڑ دیتے تھے کیونکہ یہ نمازیں اندھیرے میں ہوتی تھیں اور ان کا ایمان کمزور ہوتا تھا۔ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ نفاق کی طرف بڑھتا ہے اور جو شخص نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے کامیاب زندگی عطا کرتا ہے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت ایک ایسا عباداتی عمل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا بلکہ اس کے انداز ادا میں بھی خاص نزاکت اور اعتدال پیدا کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد صرف آیات کا ظاہری پڑھنا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور اپنے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت میں نماز پڑھتے وقت اپنی آواز کو بلند رکھا تاکہ حاضرین تک قرآن کی تاثیر پہنچ سکے اور ان کے دلوں میں اس کے معنی گر کر سکیں۔
जबकि जब वो अकेले नमाज अदा करते तो अपनी तिलावत को नरम और मध्यम रखते ताकि दिल की सुकून और इबादत की खलूसियत बरकरार रहे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत जमात में इस कदर वाज़िया और बुलंद होती थी कि हर एक शख्स उसकी खूबसूरती से मुस्तफ़ीद होता था, मगर जब वो अकेले होते तो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद ना होती थी कि वो महज समात का ज़रिया बन जाए, बल्कि एक मुखलिस गुफ्तगू की मानत नरम और पुरअसर होती थी। ये बात हमें सही बुखारी और सही मुस्लिम की मतदाद अहदीस से भी मालूम होती है कि नमाज के दौरान तिलावत का अंदाज हालात और माहौल के मुताबिक तब्दील किया जाता था, जिससे यह साबित होता है कि इबादत में अतदाल और मकसूद कलब को अवलीन तरजीह दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत में बुलंद आवाज़ का इस्तेमाल जमाती नमाज में एक अहम जुज़ था, क्योंकि इससे न सिर्फ कुरान की आयात साफ गोई से बयान होती थी, बल्कि जमात के अफराद को भी मानी और तफसीर समझने में मदद मिलती थी। इमाम की बुलंद आवाज़ इसलिए भी ज़रूरी थी कि अगर कोई शख्स नमाज में शरीक होता तो वो अपने पीछे बैठे अफराद तक कुरान की आवाज़ बआसानी पहुँच सके और उनका दिल भी इस तिलावत की तसीर से मुनव्वर हो जाए। उसके बरक्स जब कोई शख्स अकेले नमाज अदा करता है तो उसके लिए बुलंद आवाज़ की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इस हालत में इबादत का मकसद अपने दिल में अल्लाह की याद को ताज़ा करना और एक खामोश माहौल में अपने रब से गुफ्तगू करना होता है। इस सिलसिले में फुकहा ने भी यही राय पेश की है कि अकेले नमाज पढ़ते वक्त तिलावत को ऐसी मध्यम आवाज़ में अदा किया जाए कि दिल की गहराइयों तक खुशू खजू कायम रहे और दिल की हालत को ज़्यादा बेदार करके गैर ज़रूरी शोर और गुल से बचा जा सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से ये बात भी वाज़िया होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज में मुख्तलिफ मौक़े पर तिलावत का अंदाज बदल दिया। जमात में नमाज पढ़ते वक्त वो इस कदर वाज़िया और बुलंद आवाज़ में तिलावत करते कि पीछे बैठे अफराद भी आसानी से सुन सकें, मगर अकेले नमाज में इस नरमी का मुजाहरा किया गया कि दिल की तवज्जो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर मरकूज़ रहे। इस हदीस से हमें यह सीखने को मिलता है कि नमाज एक ज़ाती इबादत भी है और इज्तिमाई इबादत भी, और दोनों में तिलावत का अंदाज इसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर किसी फ़र्द की नीयत सिर्फ अपने रब से कुर्बत हासिल करना हो तो उसे चाहिए कि वह अपनी आवाज़ को मध्यम रखे ताकि उसके दिल में अल्लाह का एहसास गहराई तक मुंतकिल हो सके, ना कि सिर्फ एक ज़ाहरी अदाकारी बनकर रह जाए। एक और पहलू जिस पर गौर करना ज़रूरी है वो ये है कि बुलंद आवाज़ में नमाज पढ़ने से बाज़ औक़ात माहौल में गैर ज़रूरी शोर पैदा हो जाता है, जो कि न सिर्फ इबादत के माहौल को मुतासर करता है बल्कि मस्जिद में मौजूद दिगर इबादत गुज़ारों की तवज्जो भी मुंतशिर कर देता है। अगरचे जमात की नमाज में इमाम की बुलंद आवाज़ से सब मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन अकेले नमाज पढ़ते वक्त बुलंद आवाज़ का इस्तेमाल किसी तरह की खुद नमाई या गैर ज़रूरी शोर का बायस बन सकता है, जिससे इबादत की रूहानी मिठास मुतासर होती है। इसलिए उलमा और फुकहा की राय है कि जब कोई शख्स अकेले नमाज अदा कर रहा हो तो उसे चाहिए कि वह अपनी तिलावत को अपनी बातनी हालत के मुताबिक नरम और पुरअसर रखे, ताकि उसकी इबादत का मकसद यानी अल्लाह से कुर्बत और दिल की तस्कीन मुकम्मल तौर पर हासिल हो सके। इस बात से भी हमें आगाही हासिल होती है कि नमाज में आवाज़ का इस्तेमाल सिर्फ एक ज़ाहरी अमल नहीं बल्कि एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए इबादत गुज़ार अपने दिल की कैफियत को बेहतर बना सकते हैं। बुलंद आवाज़ में तिलावत से जमात में मौजूद अफराद को कुरान की तलीम और उसके मानी का आहता होता है, लेकिन अगर कोई शख्स अकेले नमाज पढ़ रहा हो तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपने दिल की खामोशी और अल्लाह की याद में गर्क हो जाए। इस तनाज़ुर में अहादीस की रोशनी हमें यही पैगाम देती है कि नमाज की रूहानी तसीर इस बात पर मुनसर है कि इंसान किस तरह अपने दिल को अल्लाह की याद में मशगूल करता है, ना कि सिर्फ अपनी आवाज़ की बुलंदियत पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि इबादत में हमेशा दिल की हालत और खुशू को मुकद्दम रखा जाए ताकि अल्लाह की रहमत और बरकत उनके दिलों पर नाज़िल हो सके। मज़ीद अहादीस मुबारक से यह भी मालूम होता है कि नमाज में तिलावत का अंदाज किसी हद तक बदलता रहता है, जैसा कि मुख्तलिफ नमाजों के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाया जाता था। फजर और इशा की नमाज में जमात के लिए बुलंद आवाज़ में तिलावत की जाती थी ताकि सबको सुनाई दे, जबकि ज़ोहर और असर की नमाज में जहाँ जमात का हजूम कम होता था या जहाँ नमाज को ज़्यादा खामोशी से अदा किया जाता था वहाँ तिलावत की आवाज़ भी नरम रखी जाती थी। इससे ज़ाहिर होता है कि आवाज़ का इस्तेमाल इबादत के माहौल और शराइत के मुताबिक होना चाहिए। अकेले नमाज अदा करने वाले फ़र्द को चाहिए कि वह अपनी तिलावत को इस अंदाज में डाले जो ना सिर्फ उसके दिल की गहराइयों को मुतासर करे
बल्कि उसके रूहानी सफ़र में भी मददगार साबित हो। यही वजह है कि अहादीस की रोशनी में बुलंद आवाज़ का इस्तेमाल जमात में मखसूस हालात में जायज़ करार दिया गया है, जबकि अकेले इबादत करने वाले के लिए नरम अंदाज से तिलावत अफसल समझा गया है। इस ज़मन में हमें ये भी सीखने को मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तिलावत में हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखा। उनका तरीक़ा अमल ये था कि वह ना तो इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़ते कि दूसरों को सुनाई देकर उनकी तवज्जो मुंतशिर हो जाए, और ना ही इतनी मध्यम कि कुरान की तफसीर मध्यम पड़ जाए। यही नरमी और अतदाल आज भी हमें सिखाता है कि इबादत में हमेशा दिल की सफाई और अल्लाह की याद को अव्वलीन तरजीह दी जाए। अगरचे बुलंद आवाज़ में पढ़ने से अल्फाज की तसीर बढ़ती है, लेकिन इबादत का हकीकी मकसद दिल की गहराइयों से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, जिसके लिए नरम और पुरगौर तिलावत ज़्यादा मौजू है। इस सिलसिले में फ़िक़ही कुतुब और अहादीस की रोशनी हमें यह पैगाम देती है कि हर मुसलमान को अपनी इबादत में ऐसी हालत अख्तियार करनी चाहिए जिससे उसका दिल अल्लाह के करीब हो और उसकी रूह को सुकून हासिल हो। फुकहा और मुहद्दिसीन की राय से यह बात भी साबित होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तिलावत से हमें यह मालूम होता है कि इबादत में आवाज़ का सही इस्तेमाल दिल की खुशू और रूहानी तस्कीन के हसूल का ज़रिया है। अगरचे जमात में नमाज पढ़ते वक्त बुलंद आवाज़ एक मुस्बत अमल है, क्योंकि उससे लोगों को कुरान की तालीम हासिल होती है, लेकिन अकेले नमाज की हालत में ऐसी बुलंद आवाज़ का इस्तेमाल दरअसल इबादत की रूह को मुतासर कर सकता है। यही वजह है कि अहादीस और फ़िक़ही असूल हमें ये तलकीन करते हैं कि अकेले नमाज पढ़ते वक्त अपनी तिलावत को ऐसी मध्यम आवाज़ में अदा करें कि वह दिल के अंदर तक असर अंदाज हो जाए और अल्लाह की याद को ताज़ा करते। आखिरकार नमाज एक ऐसा अबदाती अमल है जिसमें इंसान अपने रब के सामने खुलकर झुक जाता है और अपनी बातनी कैफियत को अल्लाह के सामने पेश करता है। बुलंद आवाज़ में या नरम आवाज़ में तिलावत का इंतखाब इस बात पर मुनसर है कि इस लम्हे में इंसान का दिल कैसा है और उसकी तवज्जो कहाँ मरकूज़ है। जमात में जहाँ बुलंद आवाज़ से सबको मुस्तफ़ीद किया जाता है, वहीं अकेले नमाज पढ़ते वक्त नरम अंदाज तिलावत दिल की सुकून और अल्लाह के साथ ज़ाती राब्ते को फ़रोग़ देता है। अहादीस मुबारका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा अमल से हमें यही पैगाम मिलता है कि इबादत में इत्तदाल और खुशू को बरकरार रखना सबसे अहम है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी इबादत में सही सिमत अता फरमाए और हमारे दिलों को अपनी याद से मुनव्वर रखे। आमीन सुम आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।